The next day, we went to visit a small housing society known as Parachute Colony. Here, the government is set on demolishing some houses over which the metro train has to pass. But the residents had a set of complaints which they were very eager to share with us. ये किस तरह की रियासत है, किस तरह का इनका निज़ाम है, ये लोगों से घर छीन रहे हैं, छतें छीन रहे हैं। जब इन्होंने अपना ही करना तो फिर इतनी अदालत में जाने का, केस जाने का, फिर इधर करने का क्या फ़ायदा है। जस्टिस साहब को भी इनको खींचना चाहिए कि भाई ये काम क्यों हो रहा है। The residents of Parachute Colony are mostly composed of families that migrated from India after partition. They claim that the government is being unjust towards them by threatening to demolish their homes needlessly and is not offering enough money for them to relocate. They filed a case against the Punjab government, in response to which the court issued another stay order. हम 47 से यहाँ पर हिजरत करके यहाँ पर आए थे और तब से हम यहाँ रह रहे हैं। ये ऑरेंज ट्रेन की वजह से हमारे तमाम घर मुतासिर हो रहे हैं। अगर ये मकान तोड़ने पर ही बाजिद हैं तो या तो इतने इतने पैसे दे दें, 50-50, 60-60 लाख रुपया ज़मीन के मकान की बनावट के हिसाब से। और अगर ये हमारे घर ले रहे हैं तो इसके मुताबिक हमें घर या पैसे पेमेंट करें माकूल, जिससे हम कहीं और शिफ्ट हो जाए। जब इन्होंने ये प्लान बनाया था तब ये इलाका इसकी जद में नहीं आ रहा था, ये कहीं और से गुजर रहा था। देखें, पहले इन्होंने भेजा था टीपा कंपनी वालों को, उन्होंने स्ट्रक्चर के पैसे बनवाए थे, ठीक है। एलडी वालों ने ज़मीन के पैसे बनाए। अब ये सियासी लोग हैं, सियासत से इन्होंने ये काम लिया है कि एकदम इन्हें को सब मकान 10 लाख रुपए लें। The residents showed us around to see all the places from where the orange line could have passed without necessarily demolishing any houses. They also showed us a house whose wall had apparently been damaged due to vibration caused by the construction. Some complained that government workers would often threaten the residents to leave their homes before they're demolished. हमें किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये आते हैं धमका के चले जाते हैं, आते हैं धमका के चले जाते हैं, कोई रिलीफ नहीं है हमारे। Asked why a decision by the court hadn't been made, we were told that their case was constantly being pushed back. वहाँ पे केसेस इतने हैं कि वो हमारी बारी नहीं आती, नेक्स्ट डेट पड़ जाती है। Our next stop was Kapurthala House, but on our way, we stopped over at so-called Buddhu's tomb, another heritage site where the restriction of no construction within 200 feet radius was violated. Located near the old Anarkali on Mall Road, Kapurthala House is another housing area, much of which has been destroyed by a station being constructed for the Orange Line train. Here we met Ali Rashid, a resident of Kapurthala House who has been actively raising awareness about the damage being caused by the Orange Line project. Ali showed us around and briefed us about the damage the metro train has and will cause. इस इलाके के अंदर से उन्होंने ऑलमोस्ट 400 के करीब घर जो है ना वो तबाह कर दिए हैं। जैन मंदिर चौक से लेकर और यहाँ तक 6 मोहल्ले थे जो कि अब नहीं हैं। ये वो मोहल्ले थे जिसके अंदर तकरीबन कोई 5 से 6 हज़ार लोग रह रहे थे जो कि अब यहाँ पे नहीं हैं। उन लोगों को लैंड एक्विजिशन के नाम पे कोई किसी किस्म के कानून को नहीं देखा गया। लोग डरे हुए थे, कुछ लोगों के पास पेपर्स नहीं थे। पर कमरा 10 लाख डिसाइड हुआ है, उनको पर फैमिली को 10 लाख दे दिया और वो वहाँ से निकाल दिया। Ali took us to see Baba Mauj Darya Shrine, through which the Orange Line is set to pass, also damaging a small compound as well as St. Andrew's Presbyterian Church. इसके पास से यानी कि इसको काटते हुए वो यहाँ से यूँ गुजरेंगे और सामने वो चर्च के ऊपर से। तो आप कह रहे हो कि डोम छोड़ देंगे? हाँ जी। और बाकी यहाँ से ये भी पूरा तो बाकी मज़ार यहाँ पर बाकायदा तौर पर जो है ना वो गैदरिंग होती है, लोग आते हैं यहाँ पे मानते हैं, मतलब ये 500 साल से मज़ार यहाँ पे है। अब हर जुमेरात को यहाँ पे इतना रश होता है, यहाँ पे पूरा खचाखच भरा होता है और यहाँ पे औरतें होती हैं सारी, यहाँ पे मर्दों से सारा भरा होता है पूरा। यहाँ पे कवाली वगैरह भी होती है सब कुछ। अब अगर इस कोर्टयार्ड को काट दिया जाएगा और मज़ार को कोई एक्सेस नहीं होगी तो मज़ार बचा या गया, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। We then went to the small compound known as the Maharaja building, built next to Baba Mauj Darya Shrine. This compound is endangered by the Orange Line project and most of it has been acquired by the government. Here we met Shabana,
who told us how the government workers were taking advantage of the poverty in the area and offering everyone around rupees 1 million as compensation, regardless of the value of their property. She began by telling us that though her house was not within the government's plans, government employees marked her house and were now threatening to demolish. नक्शे में तो नहीं है, ठीक है, वो ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके ऊपर निशान है। उन्होंने जब आए थे तो आके हमें निशान लगाने को कहा था। मैं रोने लग गई थी जब मैंने आके देखा, सब ने बताया था। मेरे से पहले यानी कि बिल्डिंग में आए थे, जब इन लोगों ने मना किया था तो फिर पुलिस आ गई थी ना शकील। पुलिस ने आके कहा था कि आप ऐसा करें कि आप ये निशान लगवाएं, कुछ नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता आपकी निशानदेही में तो है नहीं, अगर खुदा न खास्ता वहाँ से निकालते हैं, कोई डैमेज हो जाता है, हम आपका नुकसान पूरा कर देंगे। फिर ये काउंसलर आए थे, उन्होंने कहा कि ये कैंप लगा हुआ है, आप वहाँ पे आएँ, आके बात तो करें। वहाँ पे जो हुकूमत के लोग थे ये भी बैठे हुए थे। वहाँ पे जब हम कैंप में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं जी सॉरी, आपकी ये बिल्डिंग जो है ये खस्ता है, गिर जाएगी, तो आप ऐसा करो कि 10-10 लाख आपकी इसकी एक फैमिली की 10 लाख अमाउंट रखी है। चाहे किसी का नीचे का पोर्शन है, चाहे किसी के 10 कमरे हैं, किसी के 5 कमरे हैं, आपको सिर्फ एक फैमिली को 10 लाख दिया जाएगा। बहुत खौफ व हरास हुकूमत के लोग थे, उन्होंने आके यहाँ पे खिलाया था कि ये भी नहीं मिलेंगे तो मकान गिरा दिए जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं। फिर लोग जाहिर बात है फैमिलियों वाले थे, उन्होंने कहा कि ये कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर कुछ ना कुछ तो बेहतर है ले लें। मैंने यही कहा कि मैं निशानदेही में नहीं हूँ, मुझे घर के बदले घर दिया जाए। और बाकी अब ये लोग भी जो है ना, इतना ये लोग मजबूर हैं, रोते हैं, 10 लाख में कुछ भी नहीं आता। तो ठीक है, जो लोग पैसे वापस करते हैं हुकूमत को, जिन्होंने लिए हैं वो जो हुकूमत को पैसे वापस करते हैं, उन लोगों को मेरे समेत यहाँ कहीं अकोमोडेट किया जाए। ये शहबाज शरीफ साहब की बड़ी मेहरबानी हो, वरना मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यहाँ तो मैं इन लोगों के साथ रह रही हूँ, ये लोग मेरा ध्यान भी रखते हैं, सारा कुछ करते हैं। मुझे बताओ मैं बाहर जाके कहाँ लूँगी, कहाँ रहूँगी, मैं किसके पास रहूँगी? From our visit to the affected places, what we came to realize is that due to the billions of rupees involved in this mega project, there are forces within and outside the government that have been trying to make a profit for themselves by cutting down costs through illegal and unjust activities. Those most severely affected are the poverty-stricken, most of whom have been strong-armed into giving away their properties for a standard sum that the authorities decided themselves. As far as court orders are concerned, the government has already gone through major phases of the construction process, even in places where a stay has been granted, which means that in many places, the route is more or less finalized. It doesn't really make sense that a project designed to benefit the masses is displacing so many of them before it has even started.